ٹرمپ کا دھمکی امیز بیان، ایران کا احتجاج، برننگ سٹاک میں وفد مذاکراتی میز چھوڑ کر چلا گیا، بات چیت میں تعطل، دوسرا راؤنڈ شروع نہ ہو سکا، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا طریقہ کار طے پا گیا، ایرانی وفد کے رکن کے مطابق تیل کی فروخت پر پابندیاں اٹھانے کا ڈرافٹ بھی تیار، تکنیکی مذاکرات کے لیے وفود کی آمد پر شہباز شریف اور عاصم منیر کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ اسپیکر باقر کالیباف اور ایرانی قیادت خطے میں امن کے لیے مخلص ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی امن پسند شخصیت ہیں، وزیر اعظم کی برننگ سٹاک میں گفتگو، ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کی امید کا اظہار، جے ڈی وینس کی پاکستان کے کردار کی تعریف، کہا فیلڈ مارشل نہ ہوتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، امن آسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے تکنیکی مذاکرات سے تمام تنازعات حل نہ ہوں۔ سفارت کاری کی نئی تاریخ رقم، پاکستان نے دو عالمی حریفوں کو آمنے سامنے بٹھا دیا، اسلام آباد میمورنڈم کے بعد برجن سٹاک میں تاریخی بیٹھک، پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے تکنیکی مذاکرات، 45 منٹ پر محیط بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل، وقفے کے بعد دوبارہ مذاکرات شروع، وزیراعظم فیلڈ مارشل بھی شریک، وفود کی آمد پر شہباز شریف اور عاصم منیر کی جانب سے پرتپاک استقبال، گرم جوش مسافے اور مسکراہٹوں کا تبادلہ، خیر سگالی اور باہمی احترام کے جذبات کا بھرپور اظہار، امریکی حکام جے ڈی وینس کی قیادت میں شریک، ایرانی وفد اسپیکر باقر کالیباف کی سربراہی میں موجود، پہلے راؤنڈ میں لبنان، آبنہ ہرمز اور ایران کے جوہری ذخائر پر بات ہوئی، سی این این کا دعویٰ۔ Wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. Hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand which will go promote peace, progress and prosperity around the globe. آج عالمی امن کے لیے اہم ترین موقع، امید ہے جب گھروں کو واپس جائیں گے تو ہمارے ہاتھوں میں ایسی شاندار دستاویزات ہوں گی جو ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیں گی، ایسے بامعنی مذاکرات ہوں گے جو مستقبل میں مثبت نتائج کی طرف لے جائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو، کہا صدر ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث بات چیت ممکن ہوئی، ہم مل کر دنیا میں اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ Already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. We see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. فیلڈ مارشل نہ ہوتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، امریکی نائب صدر کی جانب سے پاکستان کے کردار کا اعتراف، شہباز شریف اور عاصم منیر کی کوششوں کو زبردست خراج تحسین، جے ڈی وینس بولے 3 دن پہلے کی صورتحال 3 ہفتے اور 3 ماہ پہلے سے بہت بہتر ہے، امن آسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے تکنیکی مذاکرات سے تمام تنازعات حل نہ ہوں، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی یقینی بنائیں گے، قطری وزیراعظم کا بھی پاکستانی قیادت کو خراج تحسین۔ Prime Minister. Vice President Jerry Lyons. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thanks for all your help. Especially this guy. What's up, My man? friend. Hello. Good to see you. Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. سوئٹزرلینڈ عالمی سفارتکاری کا مرکز، برگن سٹاک میں مذاکرات سے پہلے پاکستانی قیادت کی امریکی اور ایرانی وفود سے ملاقات، تازہ ترین صورتحال کا جائزہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی بیٹھک میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شریک، رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، مصافحہ بھی کیا، جے ڈی وینس کی جانب سے پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا، آپ نے جو کچھ کیا اس پر شکر گزار ہیں، امریکی نائب صدر کا فیلڈ مارشل سے مکالمہ، پاکستان سے محبت کا بھی اظہار۔ About the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. You about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. Especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. ایران کو بتا دیا آپ نے ہرمز بند کی تو تمہارے پاس ملک نہیں بچے گا، گزرگاہ کی بندش پر رد عمل تباہ کن ہوگا، ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو، سوشل میڈیا پیغام میں امریکی صدر نے کہا تہران کو لبنان میں اپنی بھاری فنڈڈ پراکسیز کو روکنا ہوگا، ایسا نہ ہوا تو پہلے سے زیادہ شدید حملہ کریں گے، اسرائیل کے حزب اللہ کو ختم نہ کرنے پر مایوسی ہوئی، ذمہ داری شام کے حوالے کرنے کے قریب ہوں، ایرانی صدر کو
यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक बयान पर ज़बान संभालने की वार्निंग। कहा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म इमिग्रेशन और एनर्जी के शोबों में बुरी तरह नाकाम रहे। केयर स्टारमर ओहदे से मुस्ताफ़ी होंगे। सदर ट्रंप के धमकी अमेज बयानात पर ईरानी वफ्द का एहतजाज। ईरानी वफ्द मिनाब 168 के नाम से मंसूब। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का शोहदाए ईरान और शहीद बच्चियों को खराज अकीदत। कहा कुर्बानियां हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती हैं। उम्मीद है हम अवाम के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। रवानगी के वक्त कहा दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लिबनान जंग बंदी को आगे बढ़ाना है। लेक ल्यूसन समिट खूबसूरत मकाम पर अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, कतर के परचम आवेजा। मुज़ाकरात से पहले ईरानी और स्विस वफूद की मुलाकात। इस्लामाबाद मेमोरेंडम से मुतालिक अहम अमूर पर तफसीली बातचीत। स्विस हुकाम ने पाकिस्तानी वफ्द का खैर मकदम किया। बर्जन स्टॉक में वज़ीर आज़म का जर्मन ज़बान में सहाफ़ियों से इज़हार तशक्कुर। Sir, are you confident for today? Are you confident? अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तारीख साज लम्हात, समा की लम्हा बलम्हा कवरेज। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तलत हुसैन बर्गिन स्टॉक में मौजूद। पल पल बदलती सूरत हाल की मुस्तनद रिपोर्टिंग। मुज़ाकरात के मकाम से हर सिफारती सरगर्मी पर गहरी नजर। हर खबर सबसे पहले आपने अपने नाजरीन तक पहुंचाने का एजाज। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा जहां। मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकें हमारे मुफाद में हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात के नतायज जल्द सामने आ जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। अमेरिका मुफाहमती यादाश्त की पासदारी करे नहीं तो नतायज का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद बख्बर ने खबरदार कर दिया। कहा माहिदों पर सिर्फ दस्तखत काफ़ी नहीं होते, अमल दरामद भी ज़रूरी है। अमरीकी किसी भी चीज़ से बढ़कर मईशत और मुआशी फ़ायदे की ज़बान समझते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले लेबनान में जंगबंदी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा है। इसराइल दहशतगर्दी से बाज ना आया, अमन पर वार जारी। लबनान पर मुसलसल बमबारी। आज भी वादी बका और सौर पर हमले। मजीद 7 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। 3 रोज में शहादतों की तादाद 110 हो गई। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 6 सेहूनी फौजी हलाक। इसराइल का हमास और फलस्तीन इस्लामी जिहाद के 2 जंगजू शहीद करने का दावा। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। आबरा हुर्मुज़ दूसरे रोज भी बंद। किसी जहाज को गुजरने की इजाज़त न मिल सकी। तमाम मुहाज़ों पर जंग का खात्मा मुफाहमती यादाश्त की पहली शिक है। पासदारान इनकलाब का वाज़ेह ऐलान। ईरानी क़यादत ने मज़ीद सख्त इक़दामात की वार्निंग भी दी है। मिस्र में 4 बड़े इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र शरीक। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत का खैर मकदम। एलामिया जारी। इसहाक डार की मिस्री सदर से भी मुलाकात। अब्दुल फताह अल सीसी की खित्ते के मुस्तकबिल के लिए ग्रुप के क़याम के विजन की तारीफ। ये कतई तौर पर नहीं है, लेकिन आप इज़राइल से कुछ भी तवक्को रख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इज़राइल WMD इस्तेमाल करेगा तो वो भी महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान को कभी थ्रेट महसूस हो सकती है इसराइल से, अगर इसराइली को कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की? अगर इज़राइल हमारे खिलाफ इंडिया के साथ मिलके जो है कोई किसी किस्म का कोई एग्रेशन करता है तो हम रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। इसराइल ने खुद या भारत से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत की तो उसी शिद्दत से जवाब देंगे। हम अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। प्रोग्राम मेरे सवाल में वज़ीर दिफा ने कहा यह बात उनके इल्म में नहीं कि हालिया जंग के दौरान इसराइल ईरान पर वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से हमला करने वाला था। अलबत्ता सिहूनी रियासत से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। कौमी असम्बली से मुसल्लह अफवाज के लिए 298 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर। शोबा दिफा के तरक्याती अखराजात के लिए 190 अरब से जायद की मुतालबात ज़र की भी मंजूरी। अपोजिशन की जानिब से कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की गई। मुख्तलिफ वजारतों और डिविजन्स के 43 खरब 85 अरब से जायद की 88 मुतालबात ज़र भी मंजूर।
बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर इकबाल आफरीदी की मअतली खत्म करने का मुतालबा। मुअत्तल रुकन ने मेंबरान और सिक्योरिटी अमले से बदतमीजी की। स्पीकर की वजाहत, जजिस के नाम लेकर तनकीद होगी तो स्पीकर जो करें दुरुस्त है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऊंच नीच हो जाती है, ऐवान का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। PTI इकबाल आफरीदी की जमानत दें। अली अमीन गंडापुर अपनी ही सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। महंगाई के हवाले से अवाम को घुमा सकते मुझे नहीं। मानता हूँ मुझसे भी गलतियाँ हुई, लेकिन अपने दौर में एक पैसे का कर्ज नहीं लिया। एक जिला के लिए कर्जा लेना पूरे सूबे से ज्यादती है। साबिक वजीर आला की KP असम्बली में गरज बरस। मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मंसूबा बंदी पर जोर। हायर एजुकेशन, IT, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए मुख्तस फंड्स इंतहाई कम करार। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। मामला तय पा गए। IPP और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। GB में मिलकर आगे चलेंगे। कायदीन के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। रहनुमाओं का इत्तफाक। मुराद अली शाह ही वज़ीर आला सिंध रहेंगे। तब्दीली की अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ारत आला का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, तब्दीली उस वक्त आती है जब चीजें खराब हो रही हों। सूबा आगे जा रहा हो तो वज़ीर आला बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कराची के लाइन्स एरिया में मसाइल की लंबी लाइन, जगह जगह कचरा, स्कूल और घरों के सामने गंदगी के ढेर। ताफून फैलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। मेयर मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी पर बड़ा सवाली निशान। इंतजामिया की गफलत ने शहर तबाह कर दिया, अवाम का पारा है। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। मरी, तलागंग, एबटाबाद और गिरदोनवा में भी बारिश। गर्मी की शिद्दत कम होने पर शहरी खुश। महकमे मौसमियात की मजीद कई मकामात पर रिमझिम की पेशगोई।